नमस्कार साथियों, मैं रिंपू कुमार। मेरा अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। हौसला बढ़ाते रहें। का धन्यवाद। जो क्वेश्चन है पहला कहता है which of the following number is divisible by 2। तो हम लोग अकॉर्डिंग टू डिविजिबिलिटी रूल वी नो दैट द नंबर is divisible by 2 if its unit place is having an even number like 0, 2, 4, 6, 8. So guys, we have to just circle it, those who has having unit place 2, 4, 6 and 0. Okay, just circle it. You can see all the circled number is divisible by 2, and you can also see here it's a unit place having an even number 6, 8 and 0. Okay, just note it down guys. Listen guys carefully. According to in question number 2, it is saying that whosoever the following numbers are divisible by 3. Guys, numbers are like that: 81748060720135082. Guys, you know the divisibility rule for 3. What is this? A number is divisible by 3 if its sum if sum of its digit is a multiple of 3। अगर हम लोग बात करेंगे कि अगर किसी भी संख्या को 3 से डिविजिबल है या नहीं है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको पहले उसके सारे डिजिट को हम लोग ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद अगर नंबर जो है 3 का मल्टीपल आ जाता है, इसका मतलब क्या होता है कि दिया गया नंबर, दैट गिवन नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। So guys, we are just going to do on birth. Please watch. 8 plus 1 plus 7 9 7 16. 4 plus 8 plus 12. 6 plus 0 plus 7 is equal to 13. 2 plus 0 plus 1 plus 8. 5 plus 0 plus 8 plus 2. Now guys, you have to just find out is 16 a multiple of 3, is 12 a multiple of 3, is 13 is a multiple of 3, 6 is a multiple of 3, 15 is a third. Check. You can check and you can find that 12 is a multiple of 3, 6 is a multiple of 3, 5 is a multiple of 3. That means 480 multiple of 3, multiple of 3, this way you can find that 410 and 2013 and 5082 is also divisible by 3. Just note it down guys. Hey guys, look up on this question. There is a question that is telling that which of the following numbers are divisible by 5. Guys, you have to find out in which number is divisible by 5. You guys know very well in earlier classes that divisibility rule by 5. If any number having its ones place is 5 or 0, once again I repeat, any number having its own unit place having 0 or 5, that means number is divisible by 5. In Hindi, अगर कोई संख्या के अंतिम मतलब यूनिट प्लेस यानी कि इकाई प्लेस पे अगर 0 हो या 5 हो तो समझ जाएंगे क्या ये नंबर जो है 5 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ देखेंगे मुझे मात्र 3 ही नंबर मिल रहे हैं जिनके यूनिट प्लेस पे 5 है और 0 है। किसी भी संख्या के अंतिम अक्षर, अंतिम डिजिट, अंतिम अंक अगर 5 हो या 0 हो, उस स्थिति में ये नंबर 5 से डिविजिबल होंगे। यानी ये जो सर्कल्ड नंबर हैं, दिस सर्कल नंबर आर डिविजिबल बाय 5।
See, this is the question. You have to find which of the following numbers are divisible by 10. Guys, as you know that divisibility rule of 2, if unit place is 0, that means this number is divisible by 0. In Hindi, अगर किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0 हो, दैट मीन्स यूनिट प्लेस इकाई स्थान का अंक 0 हो, तो उसे हम लोग क्या समझेंगे, 10 से डिविजिबल होगा। चलिए, यहाँ कितने अंक होते हैं, मात्र ओनली 2। 1480 इज एंडिंग विद 0, 36000 इज एंडिंग विद 0। बाय दिस वे only two number 1480 and 36000 is divisible by 10. This circle number is divisible by 10. In this question, guys, which of the following numbers are divisible by 4? Guys, as we know that from the divisibility rule of 4, if last two digit is divisible by 4, that means this number is also divisible by 4. So guys, you can check here, last here 43, last 43, this is not divisible, 84 divided by 4, that means 4 2 4 1, and this number is divisible. Last 92 is divisible by 4, that means 22, that means it is also divisible. Last 13 divisible by 4, not possible. Guys, here as we note that from the divisibility rule of 4, if last two digit is divisible by 4, that means it is also divisible by 4. You can see here there is a two number 784, last two digit is 84 and 84 is divisible by 4. And another number you can see here is the 88 at the last two digits, and it is also divisible by 4. ध्यान देंगे, चार से जो डिविजिबिलिटी रूल कहता है लास्ट का दो डिजिट अगर 4 से डिविजिबल हो जाता है, दैट मीन्स वो जो नंबर दिया हुआ है वो 4 से डिविजिबल हो जाएगा। देखिएगा यहाँ दो नंबर है जिसमें लास्ट में 84 है और 88 भी 4 से डिविजिबल है। इस तरह से ये दोनों जो पूरा नंबर है, जो सर्कल्ड नंबर है, ये 4 से डिविजिबल हो जाएगा। और ऊपर में देखेंगे लास्ट में 43 है और यहाँ देखेंगे नीचे 13 है, तो 43 भी 4 से डिविजिबल नहीं होता है और 13 भी 4 से डिविजिबल नहीं होता। इस तरह से ये दोनों नंबर 4 से डिविजिबल नहीं होगा। जस्ट नोट इट फास्ट। आज हम लोग करेंगे रिवीजन ऑफ एक्सरसाइज 1A। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ पहला क्वेश्चन। देखिएगा, कहता है राइट द मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर क्या है, यहाँ देख लेते हैं क्वेश्चन में 4 5 5 6 4 5 5 7, फिर इस तरह से गैप करके चलिए अब आपको इसमें मिसिंग नंबर लिखना है। मिसिंग नंबर लिखने के लिए क्या करेंगे ना, मिसिंग नंबर आसानी से लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ जो दिया हुआ है 3 नंबर कैसे लिखना है हम लोग लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। 4 5 4 5 5 5 4 5 5 8 4 5 5 9। बस इसी तरीके से आपका क्वेश्चन इसका 1A का पहला क्वेश्चन सारा बन जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन है, पूरा आप लोग इसको बना लेंगे। ठीक है, चलिए 2 में क्या कहता है कि राइट इन वर्ड्स आपको राइट इन न्यूमरल नंबर्स, न्यूमरल फॉर्म में लिखना है। लिखा हुआ है 2452 2452 गाइज इसी प्रकार से आपको पूरा बना लेना है ये एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, चलिए जल्दी कीजिए। इसी प्रकार आपको पूरा घर से बना के दिखाना है आपको। देखो ये जो क्वेश्चन देख रहे हो यहाँ क्या है, इसमें ये क्या है,
यहाँ अगर कुछ नहीं तो इसमें जीरो डाल देंगे, क्या डाल देंगे यहाँ, जीरो डाल देंगे। और ये कितना है, 1 2 3 4 2 5, यहाँ 5 डाल देंगे। यहाँ कुछ नहीं, जीरो, यहाँ हो जाएगा 2। ये फिर क्या कहता है, न्यूमरल फॉर्म्स में लिखना है इसे को, क्या हो जाएगा 2050 हो जाएगा। इसे लिखेंगे 2050, ठीक है, 2050 लिखेंगे। बस इसी प्रकार जो है 2 3 भी बन जाएगा, ठीक है, वहीं एबेकस पर 3 बना दोगे, ठीक है। चलो जल्दी लिखो। नंबर 4 में क्या कहता है ना कि ये नंबर दिया हुआ है, ठीक है, और कहता है कि काउंटिंग बाय टूज राइट द न्यूमरल फॉर्म्स। हम लोग क्या करेंगे, इसमें दो दो बढ़ाते हुए लिखते चले जाएंगे जहां तक खाली जगह है। जैसे ये देखो 2559 है, तो इसमें दो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2561, फिर उसमें 2 जोड़ेंगे, इस तरह से आगे बढ़ते चले जाएंगे। देखिए बोर्ड पे मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। 2529, 2561, 2563, 2565, 2567, 2569, 2571, 2573। इसी तरह से आप इसके क्वेश्चन नंबर बी सी डी ई एफ को बनाकर लाएंगे। कहता है काउंटिंग बाय 5 राइट द न्यूमरल्स। इसमें क्या करना है, 5 बढ़ाते हुए काउंटिंग्स लिखते चले जाएंगे, ठीक है। चलिए दिखाते हैं आपको क्या करेंगे। जैसे 7690 है ना, तो इसमें 5 जोड़ देंगे, फिर ये हो जाएगा 7695, फिर इसमें 5 जोड़ेंगे, फिर आगे बढ़ते चले जाएंगे इसी तरह। देखिए चलिए इसी तरह से आप इसका बी सी डी बना लेंगे घर पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है कि काउंटिंग, ठीक है, काउंटिंग बाय हंड्रेड्स राइट द न्यूमरल फॉर्म्स, यानी इसमें से 100 बढ़ाते हुए चलना है, ठीक है। चलिए देखिए कैसे बनता है, ये बनाते हैं। आप अब ये देख सकते हैं क्या कि ये 100 के स्लॉट में बढ़ाते चले गए, तो ये 6600, 66, 6700, 6800, 6900, 7000, 7100 और 7200 हो गया। इसी प्रकार लिखते जाएंगे। चलिए जल्दी लिखिए। चलिए देखिए इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है कि आप जैसे ही देखते हैं काउंटिंग बाय थाउजेंड्स राइट द न्यूमरल्स, क्या करेंगे, इसमें 1000 बढ़ाते चले जाएंगे। देखिए कैसे बढ़ाते हैं। 62,000 था, 63,000, 64,000, इसका इस तरह से इसे लिखेंगे और इस तरह से आपका एक्सरसाइज 1A खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। और इसे पूरा घर से आप बना करके लाएंगे, घर पे पूरा प्रैक्टिस करेंगे।